Welcome to the lecture number 4. And the topic of today's discussion is network classification. Now, network can be classified on different parameters on different bases. We can mainly classify the network into three main categories: on the basis of scale, on the basis of geographical span, and on the basis of a relationship. And on the basis of geographical span, the network can further be classified into local area network, that is LAN, metropolitan area network, that is MAN, and wide area network, that is WAN. And on the basis of relationship, it can be further divided into three categories that are peer-to-peer, client-server, and hybrid. In today's lecture, we will discuss the network classification on the basis of scale and on the basis of geographical span. And tomorrow we will be discussing network classification on the basis of the relationship. So let's start our discussion with network classification on the basis of scale. Now, on the basis of scale means the distance between the multi-processor system. The network can be have these types of types. Number one, you can observe on the leftmost side. This is the inter-process distance, the difference between the processes. Now, on this basis, if the distance is up to 0.1 meters, obviously that will be a circuit board, a motherboard. And the example of this type of network is data flow machines. I mean, you are transferring the data from one device to the other device within a machine. Then 1 meter is a system that covers the peripheral devices also. 10 meters a room. Nowadays, this has been replaced by a new term, a relatively new term. New term to nahi hai, but it's relatively a new term, that is PAN, personal area network. So a network that has the range up to 10 meters within a room is called PAN. PAN stands for personal area network. And if the scale is up to 100 meters, means within a building, then the network is said to be LAN, local area network. And if the network spans in 1 kilometer, then a relatively new term has been introduced. Instead of LAN, it's now known as CAN. CAN stands for Campus Area Network. And if the scale of the network is up to 10 kilometers, means if the network is within a city, then it's called MAN, Metropolitan Area Network. And if the range is 100 kilometers or beyond that, then it's known as wide area network. Again, this is basically an example of the wide area network. So actual term is WAN, wide area network. So based upon the scale, based upon the distance between the different devices connected to a computer or different computers, this can be divided into PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, and data flow machines and multi-computer systems. These are the different categories of the computer network based upon the scale. Now the next is network classification on the basis of the geographical span. कि geographically आपका network का क्या size है, उसके accordingly हम divide कर सकते हैं अपने network को mainly 3 categories में. That is LAN, local area network, MAN, metropolitan area network, and WAN, wide area network. Though you can also include the terms PAN and CAN here. So it means
if the geographical span is a room up to 10 meters, then the network is called personal area network. Up to 500 meters is called LAN. Technically, I am telling you. Okay. So if the range is 10 meters, then the network is called PAN. If the range is 1500 meters, the network is called LAN. क्योंकि ये आपको ना सभी जगह जब आप साइज देखोगे लैन का तो हर बंदे का अपना वर्जन होगा. हर कोई कहेगा कि नहीं जी इतना साइज हो तो ये है, इतना साइज हो तो ये है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? The range of normally of a LAN is 100 meters. Means technically speaking, जो एक 100 meters के अंदर का एक नेटवर्क होता है that is called LAN, local area network. लेकिन आप इसमें रिपीटर्स यूज करके इसको एक्सटेंड कर सकते हो. मींस 100 मीटर्स के बाद आपने एक रिपीटर लगा दिया, फिर उसको 100 मीटर से एक्सटेंड कर लिया, फिर एक रिपीटर लगा दिया, फिर उसको एक्सटेंड कर लिया. लेकिन आप उसको मैक्सिमम कितना एक्सटेंड कर सकते हो? अप टू 500 meters. Getting my point? So normally a LAN, a local area network, ranges up to 100 meters. But by using the repeaters, you can extend the range of the LAN, but you cannot extend the range of the LAN beyond 500 meters. Means you can use maximum 4 repeaters. And if a network, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि अब आपके कॉलेजेस में जो नेटवर्क हैं, कॉलेजेस के साइज या कोई कंपनी सपोज करो, कंपनी के जो साइट्स होती हैं उनका साइज 500 मीटर्स नहीं, वो कभी कभी एक दो किलोमीटर्स तक भी होता है. फॉर एग्जांपल जैसे यूनिवर्सिटीज होती हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, तो आप उनका अगर इफ यू विल मेजर द टोटल एरिया कवर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, it will be beyond 500 meters. So you cannot say it LAN. And obviously the range of the MAN is 20 miles. And that is not a MAN also. So the CAN basically falls in between the LAN and the MAN, where your network has the length more than 500 meters. Then we call it as CAN. CAN stands for Campus Area Network. And the next is MAN, Metropolitan Area Network. The range is up to 20 miles. And the third is Wide Area Network. The network that covers the entire globe is called Wide Area Network. लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा ये चीज है जी. मल्टीपल लैन्स को कंबाइन करोगे तो मैन बन जाएगा, एंड मल्टीपल मैन्स को कंबाइन करोगे तो वैन बन जाएगा. दो मल्टीपल जरूरी नहीं है कि हर बार मैन के लिए आपको मल्टीपल लैन्स ही आप कनेक्ट करोगे. हो सकता है कि आपकी एक ही पूरा नेटवर्क हो जो एक विद इन अ सिटी हो. देन दिस इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. So let's discuss these one by one, starting from the local area network. So this is basically owned by by an organization. Ranges up to 500 meters. It used to connect the devices like जो अब इसमें इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं. दे आर हब एंड स्विच. अब ये चीज आपको थोड़ी सी मतलब जो इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस हम यूज करेंगे फॉर कनेक्टिंग द मल्टीपल डिवाइसेस इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, वी विल बी यूजिंग हब और स्विच. वी विल नॉट बी यूजिंग डिवाइसेस लाइक राउटर. So it means in a local area network, to connect the multiple computers, you will be using hub or switch. And the device that is used to connect the multiple computers with each other is called connecting device. क्या बोलते हैं उसको? Connecting device. वो डिवाइस जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है. और लैन में जो हम कनेक्टिंग डिवाइस यूज करेंगे वो होगा हब या स्विच. लेकिन अब थोड़ा सा अब लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि हमने देखा है कि नेटवर्क कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वायर्ड एंड वायरलेस. तो वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है. तो वायरलेस नेटवर्क में
हब और स्विच तो होंगे नहीं, उसमें हम यूज करेंगे एपीज, एक्सेस पॉइंट्स। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क मींस WLAN के अंदर जो हम कनेक्टिंग डिवाइस यूज करेंगे वो नॉर्मली क्या होगा, एक्सेस पॉइंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एपी। तो इन LAN a computer can work as a server, तो जिसपे सारी सर्विसेज होंगी उसको हम सर्वर बोल देते हैं, और बाकी सभी कंप्यूटर्स को जो उस पे सर्विसेज एक्सेस करेंगे उसको हम बोलेंगे क्लाइंट। सो अब LAN को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द ट्रांसमिशन मीडिया एंड टोपोलॉजी आल्सो। जो LAN में नॉर्मली हम ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते हैं, वायर्ड में वो यूज होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर हम कोएक्सियल केबल्स यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स यूज करते हैं। तो LAN को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मैन और वैन से ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो एंड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मैंने आपको एक बार बताया था, द फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ डिवाइसेस एंड लिंक्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो नेटवर्क में डिवाइसेस को प्लेस करने की उनकी प्लेसमेंट कैसी है उसको बोलते हैं टोपोलॉजी, और टोपोलॉजीज के बेसिस पे भी हम LAN को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मैन और वैन से। तो ऑब्वियसली आप network in a building or different floors of the building is considered to be a local area net. I hope you are clear with the concept. The second classification on the basis of geographical span is metropolitan area network, a network within a city, and the maximum range is up to 20 miles. तो अब आप देख सकते हो कि अब मल्टीपल लैन्स हैं, ये अलग लैन है, ये अलग लैन है, तो इसको हमने कंबाइन करके क्या बना दिया, एक बड़ा नेटवर्क within that spans within a city, and it is called metropolitan area network or MAN. Now अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही सिनेरियो होगा कि जहां पे आप डिफरेंट लैंस को कनेक्ट करके मैन बनाओगे। हो सकता है कि आपके पास ऐसे भी हो, जैसे इंटरकनेक्टिंग डिवाइस हो गया, ये इसके साथ 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, 50 हैं, आगे फिर इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है उसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ऐसी टोपोलॉजी भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि मैन के लिए आप हर बार डिफरेंट लैंस को ही कनेक्ट करोगे तो वो मैन बनेगा। तो आपका एक सिंगल नेटवर्क भी इतना बड़ा हो सकता है, दैट विल स्पैन विद इन अ सिटी, और इसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में की क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं या क्या मेन चीजें होती हैं वो आप डिस्कस करते हैं। अब एग्जांपल तो इसकी है जी, आपका जो केबल टीवी नेटवर्क है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्योंकि योर केबल टीवी नेटवर्क covers the entire city. So your cable TV network is the example of the metropolitan area network, and it uses a coaxial cable as a transmission medium. आगे हमारा जो आगे हम एक टॉपिक आएगा ट्रांसमिशन मीडिया, देन वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल कि ये अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियाज क्या होते हैं, क्या उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो लेकिन मैन की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है दैट इज योर केबल टीवी नेटवर्क। मैन आप मल्टीपल लैंस को भी कनेक्ट करके इस्टेब्लिश कर सकते हो, और यू कैन हैव अ सिंगल नेटवर्क दैट विल स्पैन विद इन अ सिटी, दैट इज कॉल्ड मैन। अब इसमें जो इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं तो उसमें जो मेन दो चीजें रहती हैं वो आपकी रहती हैं स्विचिंग नोड्स एंड ट्रांसमिशन मीडियम। तो दोनों चीजें चलती हैं, लेकिन साथ में आपकी एक और डिवाइस आ जाता है दैट इज अ राउटर, दैट इज यूज टू कनेक्ट द मल्टीपल लैन। राउटर या ब्रिज आप इसके लिए यूज करते हो जो आपको कनेक्ट करेगा आपकी डिफरेंट लैन्स को। अब एक अब आपकी जो लैन है, एक जरूरी नहीं इन सभी का नेट आईडी सेम हो, तो इसीलिए हम अब स्विच और हब नहीं अकेला यूज कर सकते। वी नीड टू यूज द device called router or bridge to connect these multiple LANs with each other.
अब उसमें एक स्पेशल टेक्नोलॉजी भी है जो हम यूज करते हैं ना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं DQDB। ठीक है जी। सो DQDB दरअसल ये चीज होती है डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूल बस सिस्टम, इसको बोलते हैं। ये हमें आगे आएगा डिटेल में पूरा, तब हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें ऐसे नेटवर्क में हम ड्यूल बस यूज करते हैं, और हर बस के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां पे एक हेड कनेक्टेड होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ बात करता हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूल बस में क्या होता है, अब इसमें आप देख सकते हो कि दो बसेज हैं, बस ए एंड बस बी, और हम दो बसेस यूज कर रहे हैं टू कनेक्ट द सेम कंप्यूटर्स। मींस ये आपके कंप्यूटर्स हैं 1 2 3 अप टू n, and these computers are connected by using two different buses, bus A and bus B। अब जब भी कोई कंप्यूटर अपनी राइट हैंड की साइड के साथ कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेगा, मींस 1 2 के साथ करेगा या 2 3 के साथ करेगा, तो वो यूज करेगा बस ए को। लेकिन जब भी कोई कंप्यूटर अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगा, तो वो यूज करेगा बस बी को। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 2 wants to communicate with 1, 3 wants to communicate with 2, then for right hand communication all the device will use the bus A, and for left hand communication they will use the bus B। This type of setup is called DQDB। सर इसकी कोई एग्जांपल DQDB की? DQDB this is used in special cases। आपको अपने रूटीन लाइफ में इसकी कोई एग्जांपल नहीं देखने को मिलेगी। आई मीन लाइक कोई केबल टीवी नेटवर्क या आपका लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, जहाँ पे आपको स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए होती है ना, यस सर। तो तब हम ये सेटअप यूज करते हैं। लेकिन जैसे आपका केबल टीवी नेटवर्क है वो ये यूज नहीं करता, आपका नॉर्मल लैन नेटवर्क्स हैं वो ये यूज नहीं करते। तो दीज आर यूज्ड इन अ स्पेशल केसेस वेयर यू रिक्वायर्ड मोर स्पीड, क्योंकि इसमें कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है फिर। नाउ द थर्ड type of computer network based upon the geographical span is wide area network that covers the entire globe. As you can observe in the diagram, there you can see the multiple countries, they have their own network and all the networks are connected with each other. This type of network is called wide area network। तो जो पूरे आपके ग्लोब को कवर करता है दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क तो इट कैन स्पैन अप टू 100 of 1000 of माइल्स, लेकिन इसकी स्पीड है जो वो कम होती है एज कंपेयर टू द लैन एंड मैन। तो अब वही सारा इसमें कॉन्सेप्ट रहता है। आप इसमें क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, सर्वर्स भी होंगे मल्टीपल, जो मैसेज पासिंग होगी वो होस्ट टू होस्ट होगी, या होस्ट टू मल्टीकास्टिंग भी पॉसिबल है। तो इसका जो स्ट्रक्चर कुछ रहता है वो इस तरह से रहता है। डिफरेंट नेटवर्क्स को हम डिफरेंट सबनेट्स बोलते हैं, और उनको कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टिंग डिवाइस जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं राउटर, एज यू कैन ऑब्जर्व इन द diagram। Now this is the router that is used to connect the different subnets with the each other। तो लैन पे आपको राउटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। राउटर की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करोगे। इट मींस जब आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हो, देन यू विल बी यूजिंग हब और स्विच, and if you are using only hub and switch in your network, that is called LAN, local area network। तो उसको हम बोल देते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में मेनली आप यूज करोगे स्विच और हब एज अ कनेक्टिंग डिवाइस। और इसमें सबसे खासियत क्या रहेगी कि लैन के अंदर नेट आईडी क्या होगी सभी कंप्यूटर्स की? सेम। तो स्विच और हब। सो जो लैन में कनेक्टिंग डिवाइसेस यूज होते हैं स्विच और हब, और जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन सभी के जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उनकी नेट आईडी क्या होती है? सेम।
and if you have no establish the metropolitan area network by connecting different LANs, then आपको उन LANs को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टिंग डिवाइस चाहिए जिसमें आप राउटर या हब यूज करोगे। और मैन में आप डिफरेंट मैन्स को कनेक्ट करोगे, डिफरेंट सबनेट्स होंगे, तो यू कैन नॉट इमेजिन आर वाइड एरिया नेटवर्क विदाउट द हेल्प ऑफ द राउटर, नॉट पॉसिबल एट ऑल इन करंट सिनेरियो। तो अब जो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इस डायग्राम को एक बार थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। तो इसमें जो दो मेन चीजें हैं वाइड एरिया नेटवर्क में, वो है ट्रांसमिशन लाइन एंड switching elements. Now, transmission lines, they are used to carry the bits, the data in the form of bits. And the switching nodes, they are responsible for connecting the input line to the output line. ठीक है जी। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ? Now consider this diagram. Now all these are transmission lines. ठीक हो गया जी। And these are switching nodes. अब सपोज करो यहां से डेटा आया आपके पास। अब देखिए ये स्विचिंग लाइन है, ये इनपुट हो गई इसकी, लेकिन इसके आउटपुट के लिए इसके पास अब 3 लाइंस अवेलेबल हैं ना। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। अब ये डिसीजन कौन लेगा? स्विचिंग नोड आपका डिसीजन लेगा कि इनपुट लाइन से जो डेटा आ रहा है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया, द ट्रांसमिशन मीडिया विल बी यूज्ड टू कैरी द डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। और उस डेटा के लिए आपके पास आपके नेटवर्क में मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइंस हैं, और मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइंस को कौन कनेक्ट कर रहा है? स्विचिंग नोड्स। तो स्विचिंग नोड पहले तो ये डिसीजन लेती है कि जो इनपुट लाइन पे मेरे पास बिट्स आ रही हैं, तो उसको कौन सी आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट करना है। दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय द स्विचिंग नोड। तो दो चीजें होगी मेनली, ट्रांसमिशन लाइन that is used to carry the bits from one place to the other place, and the switching node that will decide on which output link you will connect the or you will transmit the input bits. तो वैन में प्रोपेगेशन डिले ज्यादा होती है, स्पीड थोड़ी कम होती है। सो दीज आर द मेन स्पेसिफिकेशंस ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें यही चीज रहेगी, आपको याद रखने की जरूरत क्या है कि रेंज कितनी है। ठीक है जी। कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं और सेटअप कैसा होता है। तो हर जगह आपको यही याद रखना है। इसके अलावा ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा यूज होता है, ये दैट विल बी योर प्लस पॉइंट। इसी तरह मैन में उसकी रेंज की क्या होती है, कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं, कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम यूज होता है। तो इसी तरह से वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें आप उसकी रेंज, डिवाइसेस, ट्रांसमिशन मीडिया और ये सारी चीज़ें याद रखोगे। जब हम वाईफाई की बात करते हैं तो जो वायरलेस लैन होती है उसको हम बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और जो वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन प्योरली टेक्निकल टर्म ये नहीं है। जो हम टर्म यूज करते हैं वो है वाईमैक्स, टू इस्टेब्लिश अ वायरलेस वाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और कोई फुली वैन अभी तक इस्टेब्लिश तो नहीं हुआ है, काफ़ी कोशिशें चल रही हैं इसके ऊपर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन को यूज करके, लेकिन स्टिल दे आर इन द डेवलपमेंट फेज, ऑन द टेस्टिंग फेज, बट वी डोंट हैव एनी fully working wireless wide area network till date। लेकिन उस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि कैसे एक वाइड एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाए जो पूरे ग्लोब को कवर करे। ठीक हो गया जी। और अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो एंड यू कैन आस्क फॉर द डाउट्स एंड क्वेश्चंस।
सर हाँ जी। सर वाईमैक्स की फुल फॉर्म क्या होगी? वाईमैक्स की फुल फॉर्म होती है जी वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस। वर्ल्ड वाइड यस सर। इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, उसको सर हम बोलते मैन कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस यूज होता है? हैं। हाँ जी। मैन में कौन सा कनेक्टेड डिवाइस यूज होता है? Basically hubs, switches and bridges, and you can also have routers. मतलब मैन में लैन और वैन दोनों के डिवाइसेस यूज होते हैं? बिल्कुल 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 ठीक। ओके। सर जैसे मतलब you आपने can बताया, imagine a LAN without the router also by using the bridges, है ना। मतलब मैन में जरूरी नहीं कि राउटर हो सकता है कि ब्रिजेस ब्रिजेस भी आप यूज कर सकते हो ना। यस। लेकिन जब आप बात करते हो वाइड एरिया नेटवर्क की, तो यू कैन नॉट इमेजिन अ वाइड एरिया नेटवर्क विदाउट द राउटर। ठीक हो गया जी। सर यस। जैसे आपने बताया मैन में जिसकी जिसकी रेंज 20 माइल्स तक होती है और उसको हम एक्सटेंड करते हैं थ्रू एक्सटेंडर। नहीं मैंने लैन की बोला था, 100 मीटर्स होती है और उसको एक्सटेंड करते हैं बाय यूजिंग रिपीटर्स। यस सर, जैसे रिपीटर्स हमने एक्सटेंडर लगा दिया तो स्पीड पे भी तो फर्क पड़ता है ना। और रिपीटर एक्चुअली आपकी स्पीड को ही कंट्रोल करने के लिए होते हैं, क्योंकि 100 मीटर्स तक चलते चलते क्योंकि वो अटेनुएशन के कारण हम ये देखेंगे ना सिग्नल इम्पेयरमेंट्स कौन सी होती हैं, कि सिग्नल की जो डिग्रेडेशन होती है वो किन चीजों पे। तो डिस्टेंस एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे जैसे सिग्नल ट्रेवल करता है तो वो वीक होता रहता है ना। हालांकि वही वो और सर। भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो जैसे जैसे वो वीक होगा तो 100 मीटर्स के आगे जा नहीं पाएगा, इसलिए हम रिपीटर्स यूज करते हैं। वो सिग्नल को एक्चुअली रिपीट ही करते हैं। यस सर। लेकिन आपको सर वो देखने वाली बात ये है कि वो रिपीट करते हैं, जनरेट नहीं करते। सर एक्चुअली ना जैसे वाईफाई लगा हुआ था मेरे फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर रिपीटर लगा हुआ है, तो सर 10 मेगाबाइट्स की ना जो बैंडविड्थ में फर्क पड़ जाता है, 50 मेगाबाइट्स की हाँ बैंडविड्थ हाँ, है। तो वही वही फर्क तो पड़ेगा ही ना। आप यू कैन देखो ना, एक तो सोर्स से है, एक्चुअल सोर्स से कनेक्टेड है चीज, है ना। और दूसरी फिर उसके आगे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है सोर्स से, तो दैट विल मेक द डिफरेंस। जो सर इसका सिग्नल आपके सोल्यूशन क्या निकलता है फिर सर, कि उसके ऊपर लिए भी आपको हाई पावर्ड डिवाइस यूज करना पड़ेगा। सर हाई वो पावर्ड कौन डिवाइस यूज करना पड़ेगा। सर वो कौन से होते हैं सर? मींस आप उनकी स्पेसिफिकेशंस देखो, डेटा रेट्स देखो और उसकी कैपेसिटी देखो अपने रिपीटर की। मतलब थोड़ा सा महंगा लेना पड़ेगा। यस। या दूसरा सोल्यूशन ये है कि अपनी आप जो लैन है उसको एक्सटेंड कर लो ऊपर वाली फ्लोर तक, और वहां पे फिर एक्सेस पॉइंट उसको एज एक्सेस पॉइंट यूज कर लो। सर जैसे कि रूटर ही ना चेंज कर ले, जैसे कि रूटर की स्पीड होती है सेट होती है ना अलग अलग रूटर्स की, हाँ, बड़ी देखो रूटर्स ले लो तो वो स्पीड भी बढ़ राउटर जाती की जो स्पीड है डिपेंड्स अपॉन योर बैंडविड्थ। सबसे पहले तो आपकी इंटरनेट की बैंडविड्थ कितनी है ना। उसके बाद जो आपका राउटर लगा हुआ है वो कितनी को सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद ही हम डिवाइस चूज कर सकते हैं। है। ओके सर। हाँ जी। लेकिन बेस्ट सोल्यूशन यही होता है, सपोज करो आपने किसी वायरलेस एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करना है। मैं आपको सेटअप बताऊं थोड़ा सा वाइड, जो आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट का सेटअप होता कैसे है। यस सर। हाँ, तो आप यस। देखिए जरा, सपोज दिस इज योर आईएसपी लाइन। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आपका राउटर मॉडेम लगा हुआ है, जो है वायरलेस इन नेचर। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। यस सर। तो हम क्या करते हैं फिर एक्चुअल सेटअप में, अब लैन के अंदर जब हम नेक्स्ट एक्सेस पॉइंट लगाएंगे तो वो हम मैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट नहीं लगाऊंगा। मींस मैं रिपीटर नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, यहां से एक्सटेंड करूंगा अपनी लैन को और ले जाऊंगा दूसरे एक्सेस पॉइंट के साथ। फिर इसको ट्रांसमिट करूंगा, फिर इसको आगे ले जाऊंगा। फिर ये सेटअप होता है। ये कॉलेज मींस जैसे आप कॉलेज में वाईफाई देखते हो ना, यस सर। उसका सेटअप ऐसा है। लेकिन सर जब फॉर एग्जांपल अब ये हुआ कि ये मेरा राउटर लाइब्रेरी के पास लगा हुआ था ना, अब लाइब्रेरी में रेंज आ रही है, लेकिन लाइब्रेरी के बाहर जो कैफे जो आपका लॉन है, जब लाइब्रेरी के बैक साइड पे जो ग्राउंड है, वहां पे मेरी रेंज नहीं आ रही है ना। तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ रिमोट एरिया। ठीक हो गया, वो ग्राउंड क्या होगी मेरी,
रिमोट एरिया। रिमोट एरिया। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं एक लैन लेके आऊं जहां अपने रिमोट एरिया तक, और यहाँ पे फिर लगा दूं एक एक्सेस पॉइंट। ठीक हो गया नितिन? यस सर। या मेरे पास दूसरा सोल्यूशन क्या है, मैं ये ना मैं लैन एक्सटेंड करूंगा ना एक्सेस पॉइंट लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि कहां तक इसकी जो रेंज है, अब रिपीटर को कैसे प्लेस करना है वो सुन लो ध्यान से। ओके सर। अब आपके पास बहुत सारे रेंज जो चेक करने के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बताते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया पे आपकी रेंज कितनी है। क्लियर हो गया? यस सर यस। तो जब मैं सपोज करो बिल्कुल राउटर के पास हूं, मेरी रेंज है 100%। एक सेकंड, हाँ, तो मान लीजिए मेरी रेंज है 100%। ठीक हो गया? तो जैसे जैसे मैं मूव करूंगा टूवर्ड्स माई रिमोट एरिया, मेरी जो रेंज है वो गिरती जाएगी, है ना? यस सर। हाँ, तो अब रिपीटर कहाँ पे लगाएं? पॉइंट ये है कि जहां पे मेरी रेंज 10% रह जाए, मैं वहां पे रिपीटर लगाऊं कि कहाँ पे लगाऊं टेक्निकली? तो टेक्निकली वही टेक्निकली लगाना चाहिए जहाँ बिल्कुल रेंज ही कम आ रही है। नहीं, टेक्निकली वहां लगाना चाहिए जहां पे थोड़ा सा सिग्नल स्ट्रांग हो, तभी रिपीटर आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके सर। अगर आपकी रेंज 10% रह जाएगी तो रिपीटर को सिर्फ इनपुट सिग्नल कितना होगा? 10%। 10%। 10%। तो वो आगे उसको बूस्ट करेगा, 10% को कितना बूस्ट कर देगा वो, है ना? गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यस सर। आइडली आप 40% पे लगाओ, है ना? ओके ताकि सर। जितनी का उसको इनपुट मिले, ताकि वो अच्छा सिग्नल आगे जनरेट कर पाए। तो इट मींस जब आपका रिपीटर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो आपको अब चेक करना होगा। आपके मोबाइल में आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो आपकी रेंज को परसेंटेज में बता देगी। ठीक है? यस सर। फिर आपने वो चेक करते जाना है कि आपका रिपीटर जहां पे आपने उसको इंस्टॉल किया है, वहां पे पहले जो आपका एक्सेस पॉइंट है उसकी कितनी रेंज आ रही है। अगर वो रेंज ही 10, 20, 30% है, तो उसके लिए रिपीटर के लिए उस सिग्नल को रीजनरेट करना, बूस्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। तो आइडली जब भी अगर आप अच्छा सिग्नल चाहते, अगर तो आपने सिर्फ खाना पूर्ति करनी है जी, देखो यहाँ पे भी सिग्नल आ रहा है, वहां पे भी सिग्नल आ रहा है ना, तो फिर तो चाहे आप 10% पे लगा दो, वो एक्सटेंड कर देगा। यस सर। लेकिन अगर आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें परफॉर्मेंस चाहिए हो आपको, तो फिर आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, अभी बहुत सारी चीजें आनी है, हमने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है, बहुत बेसिक सी चीजें कर रहे हैं। अभी तो आपका इंटरेस्ट बनने का टाइम है, यस सर। टेक्निकलिटीज आएंगी आगे। अभी अभी जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसलिए मुझे ये डिस्कस करना पड़ा, नहीं तो ये टॉपिक हमें काफी आगे आना है अभी। ओके सर। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो तो आने ही नहीं है टेक्निकली ना, प्रैक्टिकली जो आप फेस करते हो ना। यस सर। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? हाँ जी सर, हो गए। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है प्लीज? और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, मुझे लगता है कि मैं एक बार स्लाइड्स दिखा दूं आपको फिर से वापस। तो नेटवर्क क्लासिफिकेशन, इसमें से ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड ज्योग्राफिकल स्पैन हम आज डिस्कस करेंगे, डिस्कस कर लिया एक्चुअली, और कल हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप। तो उसमें हमने डिस्कस किया कि मल्टी प्रोसेसर या बिटवीन द डिवाइसेस के बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हमने डिस्कस किया। मैंने नई टर्म्स आई जो आपको इंक्लूड करनी है स्टेबल के अंदर, पैन और कैन। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल स्पैन उसमें कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, हमने वो डिस्कस किया। फिर हमने मैन डिस्कस किया, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके डिवाइसेस, और फिर हमने डिस्कस किया वाइड एरिया नेटवर्क। और अगर किसी को कोई डाउट है अभी भी, तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, आई होप या तो आपको सारा समझ आ गया या फिर चलिए बढ़िया है। तो हाँ जी, हाँ जी, कुछ पूछना चाहते सर हैं पल्लवी जी? हाँ जी सर, वो ट्रांसमिशन लाइंस जो आपने बताया था वो नहीं समझ आई। ट्रांसमिशन लाइंस ट्रांसमिशन लाइंस होता है जी आपका मीडिया, जो मीडिया। आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, वायरलेस है ना,
ठीक है। ट्रांसमिशन लाइंस वो होती हैं जो केबल्स वो कनेक्ट करती हैं आपके डिवाइसेस को, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, जो एक्चुअली आपका डेटा कैरी करती है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ बिट्स नहीं होता, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज वोल्टेज। in term of twisted pair cable and coaxial cable, light in term of fiber optics, and electromagnetic waves in term of wireless. ठीक है सर। सर स्विचिंग एलिमेंट्स कौन से थे? स्विचिंग एलिमेंट्स वो होते हैं जो आपकी मल्टीपल लाइंस को कनेक्ट करते हैं और इनपुट लाइन से डेटा लेके ये डिसाइड करते हैं कि उसको किस आउटपुट लाइन पे ट्रांसमिट करना है। ठीक है सर। और कोई क्वेरी? सर एक थी और वारी। हाँ जी ਗੁਰਨਿਰਦੇਸ਼ पूछो। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂ ਰੇਂਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਫਿਰ ਰੇਂਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਸ ਨੇ ਉਹ 에ਅਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੂੰਗੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਲਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਸਰ ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਂਟੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫॉर ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਓਮਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਓਮਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਐਂਟੀਨਾ ਆਫ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੋ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਇਦਾਂ ਆ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੈ ਉਨੀ ਲੈਫਟ ਹੈ, ਉਨੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ 100 ਮੀਟਰਸ ਤੇ ਬੈਕ ਤੇ ਉਹਨੇ 20-25 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਨਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਂਟੀਨਾਸ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁੰਦਰਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਸਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਊਟਰਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਉਹ ਐਂਟੀਨਾ ਓਮਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, तो ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਮਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ 360। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 360। ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਫਰੰਟ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਗਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 에ਅਰ ਦਾ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਸੋਲਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सर जो रिपीटर आपने अभी बताया डिवाइस, ये हम एक अलग डिवाइस होती है या अपने मोबाइल को भी हम रिपीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक किसी एप्लीकेशन भी यूज करके? आपके पास स्पेशलाइज्ड डिवाइस भी होती है इसके लिए, ठीक है जी। लेकिन मोबाइल में आपके रिपीटर फंक्शन सभी मोबाइल्स में नहीं होता। यू विल गेट वेरी रेयर हैंडसेट्स जिसमें आपको रिपीटर कैपेबिलिटी मिलेगी। अभी सर मैं प्ले स्टोर में देख रही थी तो वहाँ पे एक मतलब एप्लीकेशन देखने को मिली, वाईफाई रिपीटर। हाँ जी, वो एप्लीकेशन थी, लेकिन क्या आपके मोबाइल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर है, या जिस हार्डवेयर को वो एमुलेट करती है एप्लीकेशन, क्या उसकी कैपेबिलिटीज हैं? वी नीड टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। ठीक हो गया जी? हाँ जी ठीक है जी। अगर और कोई क्वेश्चन है तो यू
कैन आस्क। ठीक है जी, आई होप आपको सेशन क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे। सी यू टुमारो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू share, subscribe and like. Thank you so much. Thank you, sir. Thank Have you, a nice sir.